I would request Dr. N.K. Behel sir to kindly welcome our guest for the session. Honorable Chairman Sir, Dr. Amit Gupta ji, Honorable Director of GEMTech, Dr. R.K. Raghuvanshi ji, HOD School of Law, Dr. Pallavi Gupta ma'am, dear faculty members and students. First of all, I, Dr. N.K. Behel, on behalf of GEMTech family, heartily welcome Shri Jitendra Suresh Vyas ji to GEMTech School of Law. You are welcome, sir. Thank you very much. Dear participants, Suresh Vyas sir I think there is some technical skills. He remained an associate attorney from July 2018 to Feb. Sir dealt with several civil matters, including cases related to consumer protection and trademark registration. Vyas sir has vast experience in drafting briefs, agreements, wills, and notices on behalf of numerous litigants. His internship experience are also very vast. He conducted research in property laws and law of contract. Vyas sir has an experience I think there is some technical glitch on the part of N.K. Behel sir. On his behalf, I welcome you, sir. Sir is currently the trademark examiner in trademark registry in Mumbai office. So I would urge all the participants to kindly hear to his practical experiences he has attained so far. The stage is all yours, sir. Thank you very much. Thank you, Kritika ma'am, and thank you, N.K. Behel sir. So, good afternoon, everyone. Am I audible to everyone? Yes, sir, you are audible. Okay. So, I hope you all are doing well. Before we start our lecture, I consider that you guys already know about the intellectual property law and its types. Trademark is one of its types, and so I will concentrate more about practicality of trademark law, which is topic of our today's lecture. To tell you about the practicality, we must understand that it is going to be different from the theoretical work which you study in the Trademark Act 1999. Starting with that, in the today's lecture, I will be मैंने आज की जो लेक्चर है उसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है प्रैक्टिकलिटी को समझने के लिए हमें रूल्स को समझना होगा क्योंकि एक्ट जो है वो एक स्टैच्यू है पास बाय लेजिस्लेचर एंड अप्रूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रूल्स आर सेकेंडरी दे आर द गवर्निंग टूल फॉर द एक्ट they help the attorneys for practicing the actual in the practical procedures. So we will be first discussing about the rules of trademark, then later we will discuss about the manuals which we as an examiner use to examine the applications. Later we will discuss about the trademark protection mistakes made by the applicants, which are very common, and what kind of common mistakes they make. Later on we will talk about the tips and tricks about practicing as a trademark attorney. As you all are law students,
So I presume that you guys will be practicing as a trademark attorney in future after 2 years. So what kind of hacks you should be knowing about while doing your research, prior art search, and all those things. So in the last, we will discuss about the tips and tricks about that. Before we start, I request you all to also open in your browser the IP India website, and there is a website of Quick Company. So you also side by side open those websites. So when I will share with you about that, so that will become in handy with you. रूल्स के बारे में शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिकलिटी पे ही आज मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, जो आपको जरूरी है प्रैक्टिस के टाइम आपको जो काम गिरेगा उसके बारे में। When you are practicing as a trademark attorney or in a trademark IP attorney, IP practitioner आप जब बनते हो, तो ट्रेडमार्क रूल्स के अंदर फॉर्म्स दिए गए हैं जो जरूरी है जानना, बिकॉज हर एप्लीकेशन जो आप फाइल करते हो, चाहे वो अपोजिशन का हो, कोई करेक्शन या अमेंडमेंट के लिए हो, या फिर एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, या फिर पोस्ट रजिस्ट्रेशन चेंजेस हो, तो उसके लिए हर एप्लीकेशन को उन्होंने एक डिवाइडेशन किया हुआ है। So it is mentioned in the Schedule 2 of Rules 2017. You can also cross-check if you have BEAR Act and rules with you. So TMA applications के लिए है, बाद में करेक्शन के लिए TMM का एप्लीकेशन यूज किया जाता है, रिन्यूअल के लिए TMR, अपोजिशन के लिए TMO और TMP पोस्ट रजिस्ट्रेशन चेंजेस के लिए किया जाता है। फी स्ट्रक्चर जो है 2017 में ड्रास्टिक चेंज आया, फी स्ट्रक्चर को चेंजेस किए गए, ऑनलाइन फी स्ट्रक्चर डिफरेंट रखी गई और ऑफलाइन फी स्ट्रक्चर डिफरेंट रखी गई। तो हमेशा ऑनलाइन फी स्ट्रक्चर जो है वो ऑफलाइन स्ट्रक्चर से कंपैरेटिवली कम होता है। उसका भी फी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिया है, एंड इट इज मेंशन इन रूल 9 ऑफ 2017 रूल, ठीक है। और क्लासिफिकेशन के बारे में जानना प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप अटर्नी की तौर पे काम कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 45 क्लासेस है, जिसमें गुड्स और सर्विसेज को डिवाइड किया गया है, बाइफरकेट किया गया है प्रॉपरली। 1 to 34 आर गुड्स एंड 35 to 45 आर सर्विसेज। जैसे हमारा लीगल सर्विस क्लास 45 में आता है, मेडिकल सर्विसेज क्लास 44 में आते हैं, सर्विसेज रिलेटिंग टू फूड एंड रेस्टोरेंट्स कम्स अंडर क्लास 43। उसी प्रकार से जो गुड्स आप बेचते हो, खाने की जो फूड आइटम्स है, वो क्लास 30, 29, 31 इस तरह से बाइफरकेट किए गए। गुड्स आपको 1 to 34 में मिलेंगे और सर्विसेज आपको 35 to 45 में मिलेगी। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। मैं अभी रूल्स के अंदर आपको फटाफट आगे लेके जाता हूँ। उसके बाद में आता है प्रायोरिटी क्लेम्स। जब कोई एप्लीकेशन फाइल करता है, इसके बारे में जान लीजिए। जो फॉरेन कंट्री में, फॉर एग्जांपल एक अमेरिकन एप्लीकेंट है, उसने उसका ट्रेडमार्क अमेरिका में फाइल किया है, एंड लेटर ऑन ही इज विलिंग टू फाइल एप्लीकेशन इन इंडिया, और उसे प्रायोरिटी क्लेम चाहिए, यानी जो उसका यूजर है उस ट्रेडमार्क का, उसे उस डेट से चाहिए जिस डेट से उसने अप्लाई किया है अपने खुद के ओरिजिन कंट्री में। सो इंडिया के अंदर जब कभी कोई एप्लीकेशन कन्वेंशन अरेंजमेंट के थ्रू फाइल किया जाता है, तो उन्हें वो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनके रजिस्ट्री से मिलता है, उस जो ओरिजिन कंट्री का रजिस्ट्री है वहां से, वो यहाँ सबमिट करना जरूरी होता है। कई बार ट्रेडमार्क अटर्नीज एंड एप्लीकेंट्स don't give attention to this part, and that's why it is important as an attorney in a practical life to know that priority claims are very important to gain the protection as well. बाद में एक्सपीडिएटेड प्रोसीजर के बारे में भी हमारे एक्ट के अंदर और रूल्स के अंदर मेंशन किया गया है। कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं, बड़े ब्रांड्स, जिन्हें एप्लीकेशन एक्सपीडिएटेड प्रोसीजर के थ्रू फास्ट रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सो उसके भी रिलेटेड प्रोविजंस हमारे एक्ट और रूल्स में दिए गए हैं। रूल 34 में ये मेंशन किया गया है। उसकी फीस स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। 30,000 रुपीज चार्ज किया जाता है TMM के थ्रू। कई बार जो होता है एप्लीकेशन के अंदर लोग मिस्टेक करते हैं, ट्रेडमार्क अटर्नीज ऑल्सो एंड एप्लीकेंट्स ऑल्सो। जैसे मैंने कहा कि हर एप्लीकेशन का एक पर्पस होता है। आपको शेड्यूल 1 के अंदर फॉर्म्स मिल जाएंगे, शेड्यूल 2 के अंदर फॉर्म्स मिल जाएंगे। आप वहाँ चेक कर सकते हो कि किस पर्पस के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है। सो इससे जब एज ए एग्जामिनर वी रिजेक्ट मेनी टाइम
their applications because they don't file their requirements in the proper application as well. So ये इसके बारे में जानकारी रखना as a trademark attorney in practical life, it is very important, right? Then we will talk about withdrawal. कई बार ऐसा होता है कि कोई application file करने के बाद में accept होने के बाद by examiner and controller, it goes into advertisement in the journal. पर रजिस्ट्रार के ये चीज बाद में ध्यान में आ जाती है that application is accepted by mistake and it should be accepted with the limitation and condition. So he sends notice to applicant. If applicant is okay with those limitations and conditions, then it is okay. And if he is not okay with that, then he is having the right to withdraw that application within 3 months from the date of notice of that registrar. So these technicalities we must know about. Later we will talk about the manner of advertisement. Earlier what used to happen, 3 से 4 साल पहले जो जर्नल में एडवर्टाइज किए जाते थे एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस 4 महीने के लिए, 4 months के लिए. I consider that you guys know the procedure from the stage of filing of application till the stage of registration. So after acceptance of the registration, there is a time period of 4 months that application stays in an advertisement journal. People who have any objection relating to that, they can oppose there. So manner of advertisement ये है कि वेबसाइट के ऊपर अब हर वीक जर्नल पब्लिश किया जाता है. वहाँ पे पब्लिश करने की वजह से ये एक प्रॉफिट होता है कि एप्लीकेंट को और अटर्नीज को अब पर्टिकुलरली वो जर्नल परचेस नहीं करना होता. They can directly go on the website and check and cross check their registered mark as well. कि कोई ऑलरेडी किसी व्यक्ति ने हमारा रजिस्टर्ड मार्क तो फाइल किया नहीं है, राइट? अब आते हैं एसोसिएटेड ट्रेडमार्क्स के ऊपर. जैसे हमने देखा है बड़े ब्रांड्स जो होते हैं, टाटा, रिलायंस, पतंजलि, हिंदुस्तान यूनिलीवर, these big companies do what? They file continuously various trademark applications, and there is no big change in those applications. सिर्फ slight variety of design होता है, कुछ कलर में चेंजेस होते हैं या फिर फॉन्ट में चेंजेस होती है. सो उनके जो पहले के रजिस्टर्ड मार्क्स है उन्हें एसोसिएट किया जाता है नए रजिस्टर अप्लाइड मार्क्स से. इससे एग्जामिनेशन प्रोसीजर के अंदर स्पीड मिलती है और जो ऑब्जेक्शंस रेज करने के कुछ चांसेस भी होते हैं तो वो चांसेस भी कम हो जाते हैं बिकॉज देयर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड मार्क ऑफ द सेम एप्लीकेंट. सो दैट हेल्प्स फॉर द एप्लीकेंट एज वेल एज एंड in the eye of examiner as well. फिर आते हैं रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन. वी नो दैट एक बार ट्रेडमार्क एप्लीकेशन रजिस्टर होने के बाद हमें 10 years का प्रोटेक्शन मिलता है. उसके बाद ये परपिचुइटी के लिए हम रिन्यूअल कर सकते हैं विथ एवरी 10 years. उसमें 10,000 रुपीज हम रिन्यूअल के चार्ज करते हैं. नाउ देयर इज अ वेरी यूनिक थिंग पीपल हैव अप्लाइड हियर. व्हाट दे हैव डन के रिन्यूअल के जो सिंगल फॉर्म है उसका ट्रेडमार्क फाइलिंग का खर्चा होता है 5,000 और जब रिन्यूअल की बात आती है तो उसे 10,000 लगता है. सो प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल एप्लीकेंट्स क्या करते हैं कि instead of renewing that application, they do slight changes in the same mark and file the new application before it gets that application is getting over 10 years complete होने के पहले. So वो मार्क एसोसिएट होके रजिस्टर हो जाता है. फिर अगर पुराना मार्क अबेंडन भी हो जाता है आफ्टर 10 years, still he is having new mark with the same name but slight changes. और ये पॉसिबिलिटी होती है कि नया मार्क उनके स्लाइट चेंजेस हो ही जाते हैं 10 years में. सो ये न्यू कॉस्ट कटिंग का तरीका लोगों ने फाइंड आउट किया है, कंपनीज ने, स्टार्टअप्स ने, अटर्नीज ने. सो दीज आर द प्रैक्टिकलिटी. यानी लॉ में तो लिखा है रिन्यूअल करने के बारे में बट अटर्नीज ने और कंपनीज ने ये फॉर्मूला भी अपनाया है. दैट वे दे कैन सेव 5,000 एज वेल. देन वी टॉक अबाउट डिवीजन ऑफ एप्लीकेशन. जैसे हमें पता है कि हर क्लास के लिए एक एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, पर अगर किसी एप्लीकेंट को मल्टीपल क्लास में अपना एप्लीकेशन फाइल करना है, सो ही कैन फाइल अ सिंगल एप्लीकेशन मेंशनिंग मल्टीपल क्लासेस एंड पे द फीस ऑफ द मल्टीपल क्लास. ही विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ कंसेशन इन दैट. पर फिर इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जब कभी कोई ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है एग्जामिनर के थ्रू या फिर कोई अपोजिशन आता है आफ्टर एक्सेप्टेंस, जब वो एडवर्टाइजमेंट में होता है, तो ऑब्जेक्शन या फिर अपोजिशन पूरे एप्लीकेशन पे लिया जाता है. और ऑब्जेक्शन और अपोजिशन भले ही एक क्लास में लिया गया हो बट सभी क्लास उसके वजह से अटक जाते हैं. तो फिर ऐसे टाइम पे एक प्रॉफिट
एक प्लस पॉइंट दिया गया है एप्लीकेंट को कि वो अपना एप्लीकेशन डिवीजन कर सकता है। डिवीजन कैसे करेगा? तो वो एप्लीकेशन जो उन्होंने फाइल किया है उसे पेरेंट एप्लीकेशन में रखा जाएगा, जो ऑब्जेक्टेड क्लासेस है उसे पेरेंट एप्लीकेशन में रखा जाएगा, और जो अपोजिशन वाली क्लासेस है उन्हें जो जिसपे किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है उन्हें चाइल्ड एप्लीकेशन बना के नए एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड की जाती है। इससे जो ऑब्जेक्टेड मार्क है उस पर हियरिंग डिफरेंट से चलेगी, और जो मार्क एक्सेप्ट हो सकते हैं वो स्पीडीली आगे एक्सेप्ट हो गए। सो डिवीजन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में कई लोगों को नहीं पता होता, इसलिए उनके कई बार लिटिगेशन कई टाइम पीरियड के लिए अटक जाते हैं, उनका गुडविल होता है जो अटक जाता है। So division of application is a very important point we must know while practicing trademark law and as a trademark attorney. Then ratification and removal of trademark. अब जब रजिस्ट्री को मार्क रजिस्टर करने का अधिकार है तो रिमूवल का भी अधिकार है, वो रूल 97 में मेंशन किया गया है। और उस किसी व्यक्ति को जो स्टेक होल्डर है who is interested to ratify any kind of mark, so he can file an application under TMO and show his reason, interest and seek relief, what kind of relief he is seeking for. अब इसका एक रिसेंट एग्जांपल जो अभी लास्ट ईयर कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में हुआ, कोविड-19 के समय में, वो है N95 मास्क के बारे में। हुआ ये था कि रजिस्ट्री के थ्रू वो मार्क एक्सेप्ट हो गया था, और एप्लीकेंट ने ट्रेडमार्क अमेजोन के अंदर, अमेजोन वेबसाइट कंपनी को नोटिस भेजा कि that mark cannot be used by any other seller and should be removed from the website. So कई स्टेक होल्डर्स जो है, कई सेलर्स जो है, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया, और रजिस्ट्री की ये बाद ध्यान में आई। और सिंस N95 is a generic word used for the mask to show the quality of that mark was removed from the ratified from the trademark registry. उसके बाद में हियरिंग की प्रोसीजर जो है, लॉकडाउन के सिचुएशन में हमने अभी देखा है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कंडक्ट कर रही है, एंड बहुत हेल्पफुल रहा है ये हियरिंग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग लेना। उसके बाद में वेल नोन मास्क के बारे में हम जानेंगे। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? Yes, sir, you're audible. Okay. Then well-known मार्क्स के बारे में भी हमारी रजिस्ट्री के अंदर एक बात मेंशन की गई है। जैसे well-known मार्क्स वो है जो मार्क्स ने एक अपनी ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है जिसके वजह से लोगों को पता है कि अगर ये नाम है, ये वर्ड है, तो वो उसी कंपनी का है। सो जब कोई कंपनी वेल नोन हो जाती है, एक ब्रांड अपना गुडविल इस तरह का इस्टेब्लिश कर लेता है, सो ही कैन अप्लाई फॉर दी to the registry for putting its name in a well-known mark category list. So जैसे कि आप देख सकते हो, गूगल और पेप्सी जो है well-known mark की लिस्ट में आता है। मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ साइड में। जो लिस्ट है वो हमें वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड की गई है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। This is the list of well-known marks. Total 80 well-known marks अभी तक रजिस्टर किए गए हैं। रजिस्ट्री के पास अधिकार है कि वो well-known marks में से किसी भी मार्क को अगर ऐसा लगता है कि अब वो well-known नहीं रहा है, उसे निकाल सकते हैं, right? There are total 84 well-known marks right now. Now, next point of the rules which I want to mention is form of authorization. ये बड़ा important point है। कई लोगों को इसके अंदर लॉकडाउन के टाइम पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, और पहले भी और आज भी क्रिएट होता रहा है। लोगों को कोई जानकारी नहीं है। क्या होता है कि जब कोई अटर्नी या एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट एप्लीकेशन फाइल करता है, सो ही हैज टू टेक अ फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन और पावर ऑफ अटर्नी जो पहले कहा जाता था फ्रॉम द एप्लीकेंट। जब पावर ऑफ अटर्नी आप बोलते हो, एप्लीकेशन फाइल करते हो फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन और उसमें पावर ऑफ अटर्नी मेंशन करते हो, तो इट इज नेसेसरी दैट यू शुड गिव दैट एप्लीकेशन इन द स्टैम्प पेपर। पर लॉ के अंदर लिखा है अंडर सेक्शन 145 एंड रूल 19 कि आप स्टैम्प पेपर के ऊपर खर्चा नहीं भी करो, सिर्फ ये बात मेंशन करो कि ये एक फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन है, और ये सेक्शन 145 एंड रूल 19 के अंदर बनाया गया है। सो यू विल गेट एग्जम्पशन फ्रॉम दैट स्टैम्प ड्यूटी। पीपल आर स्पेंडिंग सो मच मनी इन दैट स्टैम्प पेपर एज वेल
500 रुपीज खर्चा करते हैं एप्लीकेंट्स कई बार जब पर्सनली फाइल करते हैं। अटर्नीज भी आज भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमें। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कैसा फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन फाइल करना होता है। तो इस प्रकार से यू कैन सी, यू डोंट हैव टू मेंशन पावर ऑफ अटर्नी ऑन इट, यू जस्ट मेंशन दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन बाय ऑफ एन एजेंट। ट्रेडमार्क अटर्नी मेंशन कीजिए, जो उसमें का मैटर है वो सिमिलर रहेगा जो आप पावर ऑफ अटर्नी में पहले मेंशन किया जाता था, एंड मेंशन द सेक्शन एज वेल। So this way, companies can save their money, cost cutting they can do, and move further with the application as well. एप्लीकेशन फाइल करते समय ये काफी टाइम हमने एज ए एग्जामिनर ऑब्जर्व किया है, और कई बार फॉर्मेलिटी चेक फेल भी इसी रीजन से होता है। अब सेकेंड टॉपिक पे हम आएंगे जो है मैनुअल के बारे में। वी एज ए एग्जामिनर and officers use a manual. It is in a public domain. You can go on website and see the manual. It is a draft manual provided by the registry itself for the officers. So जो ट्रेडमार्क अटर्नीज है, एप्लीकेंट से जब कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उन्हें मैनुअल जो हमारे लिए बना है उसे भी रीड आउट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर उसे वो रीड आउट कर लेंगे तो उनकी जो पॉसिबिलिटी एप्लीकेशन में मिस्टेक्स होने की वो कम हो जाएगी, बिकॉज वी फॉलो दिस मैनुअल, सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। सो इस मैनुअल में क्या क्या मेंशन हमने किया होता है, आई विल शो यू वन बाय वन। दिस इज द ड्राफ्ट मैनुअल प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए ये फॉलो किया जाता है, राइट? इसका पर्पस क्या है? यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाना प्रैक्टिस और प्रोसीजर के ड्यूरिंग प्रोसीजर फॉलो करते समय एडमिनिस्ट्रेशन इस मैनुअल को फॉलो करता है। उसके जो कंटेंट्स है वो हम समझ लेंगे ऊपर से, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम दैट वी डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल, but you can go and visit the website, this manual, and read out about it. It is very important as a trademark attorney as well. यहाँ पर आपको फॉर्म कौन सा फॉलो करना चाहिए किस टाइप के एप्लीकेशंस के लिए पता चलेगा, राइट? उसके बाद में आप साइड में पावर पॉइंट भी देखते रहिए और ये मैनुअल्स को भी चेक करते रहिएगा। वहाँ पे आपको मेंशन किया रहेगा कि किस टाइप का कंटेंट आपको उसके अंदर लिखना है, और पब्लिक लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, अगर कोई ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, तो पब्लिक हॉलीडेज के टाइम पे लास्ट डेट किस तरह से काउंट की जाती है, किस किस का एप्लीकेशन उस सिग्नेचर उस एप्लीकेशन के ऊपर रिक्वायर्ड है। उसके बाद में एड्रेस ऑफ सर्विस किसकी लगेगी। जब कभी भी कोई अटर्नी के थ्रू ट्रेडमार्क फाइल करता है तो जनरली एड्रेस ऑफ सर्विस अटर्नी के ऑफिस का होता है, बट इट इज ऑन दी ऑप्शन ऑफ एप्लीकेंट एज वेल। वो एड्रेस ऑफ सर्विस अपना खुद का भी रखता है, बट कई बार it is a very good thing that applicant gives service address service जो है वो खुद का रखे, क्योंकि अटर्नीज कई बार कई सारे काम होते हैं उनको, so they don't give you information के क्या नोटिस रजिस्ट्री के थ्रू आया है। so it is best that you keep the, as a applicant you keep the service address of yours as a applicant। उसके बाद में ट्रेडमार्क एप्लीकेशन एग्जामिन करते समय हम लोग क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जब कोई एप्लीकेशन फाइल किया जाता है वो सबसे पहले वियना कोडिफिकेशन के लिए जाता है। वियना कोडिफिकेशन क्या है? वियना कोडिफिकेशन एक इंटरनेशनल तरीका है जहाँ कोई डिवाइस मार्क फाइल किया गया है, तो वहाँ पर उस डिवाइस के अंदर क्या क्या शेप्स है, कौन सी लैंग्वेज है, कौन से कलर्स है, उसको एक नंबर दिया जाता है, कोडिफाई किया जाता है। अटर्नीज को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। एज ए examiners we use that Vienna codification to find out in our huge database that there is a similar mark in real filed already or not, right? After Vienna codification it goes for data processing in case of offline marks, offline applications, और जब कोई एप्लीकेशन ऑनलाइन है तो वो डायरेक्टली एग्जामिनर्स के पास में चला जाता है। फिर चाहे उसमें ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन की कोई मिस्टेक हो तो वो नोटिफाई करते हैं एप्लीकेंट को बाय रेजिंग ए एग्जामिनेशन बाय जनरेटिंग एग्जामिनेशन रिपोर्ट। उसके बाद में और भी कई चीजें होती है। अभी हम सेकेंड पॉइंट पे हैं, राइट? यहाँ पर उसके बाद में अगर कोई एप्लीकेशन के अंदर किसी ने ट्रेडमार्क टाइप प्रॉपरली मेंशन नहीं किया है कि वो सिंगल फर्म है या इंडिविजुअल है या स्मॉल एंटिटी है या मार्क सीरीज मार्क है या कलेक्टिव मार्क है, ये कई बार मिस्टेक्स की जाती है ऑनलाइन फाइल करते समय, ये मिस्टेक्स आती है। सो एग्जामिनर जो है ये सब चीजों को ध्यान में रखता है, और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, कोई उसमें फॉर्मेलिटी
चेक फेलियर नहीं आता है तो वो एक्सेप्ट करके मार्क आगे फिर उसको सेक्शन 9 और 11 के क्राइटेरिया में उसको चेक करेगा। बट फॉर्मेलिटी चेक में ये बेसिक क्राइटेरियाज आते हैं। अगर आपका मार्क किसी अदर लैंग्वेज में है अदर देन हिंदी और इंग्लिश, so you have to give the translation and transliteration as well. Many time applicants don't know about that. So इंडिया में जो साउथ इंडियन कंट्री स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, केरला, ये स्टेट्स के जो एप्लीकेंट्स है कई बार एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उस लैंग्वेज में फाइल करते हैं जो हिंदी और इंग्लिश से डिफरेंट है। सो उस टाइम उन्हें ट्रांसलेशन और ट्रांसलेटेशन देना होता है, वो नहीं देते, इसलिए उनका कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि टीएमएम के थ्रू उन्हें और एक एप्लीकेशन अमेंडमेंट और करेक्शन के लिए देना होता है। बाद में पोस्ट एग्जामिनेशन क्या होता है, जैसे मैंने कहा एग्जामिनेशन रिपोर्ट जनरेट की जाती है। सो एग्जामिनेशन रिपोर्ट जनरेट होने के बाद चाहे वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो या फिर ऑब्जेक्टेड हो, तो वहां पर जो भी रिक्वायरमेंट कही गई होगी एग्जामिनर थ्रू, वो रिक्वायरमेंट टीएमएम के थ्रू सॉर्ट आउट की जाती है, राइट, बिफोर द रजिस्ट्रेशन एंड आफ्टर एग्जामिनेशन। फिर आता है अगर वो एग्जामिनेशन में कोई फॉर्मेलिटी चेक फेल नहीं है, मार्क बहुत अच्छा है, कोई ऑब्जेक्शन उसमें रेज नहीं किया गया है, सो वो जाएगा एडवर्टाइजमेंट में। फिर वहां पे स्टिल एक पॉसिबिलिटी है, वो है अपोजिशन का। सो अपोजिशन के अंदर जो क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करनी चाहिए, उसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे रजिस्ट्री में है। जैसे प्रास सेक्शन है जो पोस्ट रजिस्ट्रेशन सेक्शन को पोस्ट रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट्स और करेक्शन को मेंटेन करता है। फिर एक पाम सेक्शन है जो टीएमएम के थ्रू करेक्शंस की जाती है, उन अमेंडमेंट्स को करेक्ट करके फिर से एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनर्स को भेजता है। अगर फॉर्मेलिटी चेक फेल है या फिर ऑफलाइन एप्लीकेशन में बाय मिस्टेक डेटा गलत प्रोसेस किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का एक डिपार्टमेंट है ईडीपी, उसे भेजा जाता है। सो ये डिपार्टमेंट्स आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप जब कोई एप्लीकेशन फाइल करते हो तो रजिस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है। प्रास डिपार्टमेंट है, पाम डिपार्टमेंट है, पाम सेक्शन है, ईडीपी सेक्शन है और एक एग्जामिनेशन सेक्शन है। एग्जामिनेशन 2 लेवल पे होती है, एग्जामिनर करता है और उसके अंदर कंट्रोलर जो होता है वो उसको फिर से री एग्जामिन करता है, उसके बाद में एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड किया जाता है। अब उसके बाद में पोस्ट रजिस्ट्रेशन सेक्शन में क्या होता है, कभी कभी कोई एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में जो ट्रेडमार्क ओनर है वो किसी को वो मार्क असाइन करता है। सो जब वो असाइन करता है तो वो जो असाइनमेंट डीड है उसे रजिस्ट्री में सबमिट करनी होती है बाय वे ऑफ टीएमएम और उसके बाद में फिर वो पोस्ट रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाएगा। वो कैसे की जाएगी वो मैनुअल में लिखा है, तो ये मैनुअल आप रीड आउट कर सकते हो। इसको आप ऐसा समझ लीजिए हमारे डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह से हर प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारे लिए है बट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप भी रीड आउट करके अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। आपको इससे क्लैरिटी आ जाएगी कि किस प्रकार से एप्लीकेशन किस किस स्टेप में है राइट नाउ, यानी आपको एप्लीकेशन को कितना और टाइम लगने वाला है, करेक्ट। इसके बाद में हम आ जाते हैं थर्ड टॉपिक पे। नाउ थर्ड टॉपिक इज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक एप्लीकेंट मेक्स व्हाइल प्रोटेक्टिंग देयर ट्रेडमार्क्स। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नो व्हाई, बिकॉज अभी रिसेंटली हमने देखा कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हुआ, उसका थीम था 26 अप्रैल को आईपी एंड एसएमईज। सो वर्ल्ड में जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है ये वर्ल्ड का 70% बिजनेस हैंडल करते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन लोगों ने बहुत कम अपने आईपी को प्रोटेक्ट किया है। क्यों? और प्रोटेक्शन जब वो करते भी है, फाइल भी करते हैं एप्लीकेशंस, तो वो बेसिक 6 ऐसी मिस्टेक्स है जो वो जनरली करते हैं। सो एज अ ट्रेडमार्क अटर्नी व्हेन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट इन रियलिटी दैट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट ट्रेडमार्क लॉ, सो आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि क्या मिस्टेक्स कंपनीज, एंटरप्राइजेस, एलएलपीज करते हैं, तो ताकि वो आप जब कंसल्टेशन करेंगे क्लाइंट्स को तो वो पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकें। सो फर्स्ट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग विदाउट लीगल कंसल्टेशन। क्या होता है, कई बार एप्लीकेंट्स, जैसे ब्रांड का क्या होता है, ब्रांड ट्रेडमार्क फाइल करने से पहले ही बनना शुरू हो जाता है। जो एप्लीकेंट होता है वो ब्रांड को शुरुआत से बनाना शुरू कर देता है। जब उसके ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाती है, गुडविल बन जाती है, तब उसे लगता है कि अब मैं इसे ट्रेडमार्क फाइल करता हूँ, और तब तक की कई बार देरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने जो शुरुआत की थी ब्रांड को बिल्डअप करने के लिए, वो विदाउट लीगल कंसल्टेशन किया था, रिस्क असेसमेंट नहीं किया था उसके बारे में,
अटर्नीज के थ्रू उसका प्रायर आर्ट सर्च नहीं कराया था. सो ये वन ऑफ द मिस्टेक है जो अप्लीकेंट्स करते हैं while protecting their trademark. They don't consult with their legal attorneys and don't take legal consultation as well. उसके बाद में आता है फिर नॉट रिकॉग्नाइजिंग ट्रेडमार्क प्रोज एंड कॉन्स. कई बार ऐसे ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए अप्लाई करते हैं जो बड़े जेनेरिक होते हैं. अब गुड ट्रेडमार्क किसे कहा जाएगा? ऐसा ट्रेडमार्क जो दूसरे ट्रेडमार्क जो किसी एक आपके प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश कर सके और कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करे. ये पर्पस है एक ट्रेडमार्क का. और ऐसा ट्रेडमार्क जो डिस्क्रिप्टिव ना हो, जेनेरिक ना हो और डायरेक्टली जो आप सर्विस या गुड प्रोवाइड कर रहे हैं उससे सजेस्ट नहीं कर रहा. राइट. सो जेनेरिक वर्ड कैसे होते हैं? कई बार लोग क्या करते हैं, भगवान के नाम एज ए ट्रेडमार्क फाइल करते हैं. भगवान के मार्क अंडर सेक्शन 9 रजिस्टर नहीं किए जाते, बट स्टिल पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट आईपी लॉज एंड ट्रेडमार्क प्रोसीजर्स और किस टाइप के ट्रेडमार्क फाइल की जाती है. तो इससे क्या होता है, आप गुडविल क्रिएट कर रहे हो, बट आप गुडविल क्रिएट करने के बावजूद भी प्रोटेक्शन नहीं पा रहे हो आपके ट्रेडमार्क का. कई लोग जेनेरिक वर्ड क्या होता है, जैसे आप बेच रहे हो मोबाइल और आपका ट्रेडमार्क आपने फाइल किया एज ए मोबाइल विच कैन नॉट बी रजिस्टर्ड. जो आप बेच रहे हो वही आपका ट्रेडमार्क कभी नहीं हो सकता. जो सर्विस आप दे रहे हो वही सर्विस आपकी कभी सर्विस मार्क आपका नहीं हो सकता. जैसे मैं लीगल कंसल्टेशन देता हूँ, सो मेरा ट्रेडमार्क लीगल कंसल्टेशन, सर्विस मार्क लीगल कंसल्टेशन बोल के नहीं रह सकता. तो जो रिकॉग्निशन है करना है ट्रेडमार्क कौन सा सही है गलत है, इसमें वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं. जेनेरिक मार्क्स फाइल करते हैं, डिस्क्रिप्टिव मार्क फाइल करते हैं, सजेस्टिव मार्क फाइल करते हैं. डिस्क्रिप्टिव मार्क कैसे होते हैं? जैसे जो अटैच होते हैं प्रोडक्ट गुड्स के नाम से, जैसे पिज्जा हट है, वो मार्क रजिस्टर्ड तो होते हैं बट उसके लिए कई समय तक के आपको गुडविल क्रिएट करनी होंगी और ये प्रूव करना होगा कि आपके मार्क का एक आइडेंटिटी हो चुका है, लोग जानते हैं. बट अगर आप वो आइडेंटिटी क्रिएट करने में फेल हो जाते हैं तो आपने जो अभी तक की गुडविल क्रिएट की है वो पूरी वेस्ट हो जाएगी. जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा. सो this is one of the mistake applicants make while filing a trademark application. Next है जो सबसे strong mark होता है as a trademark attorney when we suggest to any client what kind of mark they should select, or as an applicant he should select a trademark that should be arbitrary and fanciful. Arbitrary mark कैसे होते हैं? जैसे एप्पल से आपको मोबाइल ध्यान में नहीं आता, इसलिए वो बिल्कुल ही टोटली आउट ऑफ द बॉक्स थॉट है एक ट्रेडमार्क के लिए, और उस पर गुडविल बनाने की वजह से आपका ट्रेडमार्क का जो प्रोटेक्शन है बहुत स्ट्रांग हो जाता है. सो एप्पल इज अ वेरी गुड आर्बिटरी मार्क. फैंसीफुल मार्क में आप कुछ ऐसा लोगो बनाते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं जो बहुत ही बढ़िया दिखने में है और एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है, एक मीनिंग भी उसके अंदर होता है. सो रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई लोग अभी भी मिस्टेक्स करते हैं. थर्ड मिस्टेक है यूआरएल और सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप की प्रेजेंस बनाना. जैसे आज जो एसएमईज है, आज का टेक्नोलॉजी का जो वर्ल्ड है, यहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस सभी लोगों को है, स्टिल पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट सोशल मीडिया वेरी वेल. दे आर नॉट ओपनिंग देयर अकाउंट्स ऑन सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, देन ट्विटर और टिम्बलर हो गया, या ये सभी जो वेबसाइट है सोशल मीडिया, यहाँ पे आपके जो कस्टमर्स बिल्डअप कर सकते हो आप. यहाँ पे अगर आपने नहीं किया सो आपके गुडविल को कोई और एक्सरसाइज कर सकता है यहाँ पे. सो इट इज अ वेरी important aspect to know as a trademark attorney, to consult your clients and to suggest them that what kind of strategy they should follow while protecting their trademark and goodwill as well. Third point हम आते हैं not watching trademark after approval. क्या होता है, ट्रेडमार्क फाइल तो कर दिया, कई लोग फाइल करते हैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन बिकॉज इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, 4500 आपको ऑनलाइन लगते हैं. कई लोग आज भी विदाउट एनी लीगल कंसल्टेशन और विदाउट एनी अटर्नी फाइल कर रहे हैं. सो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में भी उसका कौन इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते. और ये जो इन्फ्रिंजमेंट जो होता है, पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट, ये बहुत बड़ा लॉस उस बिजनेस एंटिटी को पहुंचाता है. सो प्रैक्टिकलिटी में जब हम एज ए ट्रेडमार्क अटर्नी काम करते हैं तो ये मेक श्योर करना होता है
जो आपका क्लाइंट है उसके ट्रेडमार्क को आफ्टर फाइलिंग दैट ट्रेडमार्क एंड getting registration certificate of trademark, we keep due diligence and keep on checking on those journals which I mentioned on their website. They publish weekly. आप उसे रेगुलरली चेक कीजिए, कोई देखिए बाय मिस्टेक कोई मार्क रजिस्टर्ड तो नहीं हो गया जो सिमिलर है आपके मार्क से. टाइमली अपोजिशन रेज कीजिए. और जो इसी में मैंने आपको 4 पॉइंट भी कवर कर दिया. थ्रेड को सीरियसली नहीं लेते हैं. जैसे किसी ने कोई मार्क रजिस्टर तो कर लिया बट उसे पता है कि पूरे इतना बड़ा इंडिया है, भारत बहुत बड़ा है, बहुत से स्टेट्स है, 29 स्टेट्स है. इन सभी स्टेट्स के अंदर आपको ध्यान रखना होता है कि आपका ट्रेडमार्क कहीं इन्फ्रिज तो नहीं हो रहा. बिकॉज आपको जो ट्रेडमार्क मिला है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं मिला, आपको पूरे कंट्री के लिए मिला है. सो जो पोटेंशियल थ्रेड्स है उसको ध्यान में लेना और उन पे एक्शन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. और इसमें बहुत से लोग आज भी इंडिया के अंदर मिस्टेक कर रहे हैं. उन्हें उस थ्रेड्स को सीरियसली न लेते हुए अपोजिशन फाइल नहीं करते हैं आज भी. इससे क्या होता है, सिमिलर मार्क बहुत सारे फाइल हो जाते हैं. करेक्ट. बाद में आता है यूजिंग ट्रेडमार्क एज रजिस्टर्ड. कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत से ट्रेडमार्क फाइल करते हैं और ट्रेडमार्क फाइल करने के बाद में उसको यूज नहीं करते. सो जब आप ट्रेडमार्क यूज नहीं करते हो सो वो ट्रेडमार्क लैप्स हो जाता है. अगर किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया दैट दिस मार्क हैज नॉट बीन यूज्ड बाय द एप्लीकेंट, द रजिस्टर्ड यूजर इन लास्ट 4 to 5 years, then he can request to the registry that this mark should be removed from the register and should be granted to me. So आपने मार्क को जो है हमेशा यूज करते रहिए. ऐसा कंसल्टेशन इन प्रैक्टिस every attorney should give to the applicant, to the registered user of that trademark. सो ये हुए कुछ पॉइंट्स जो मिस्टेक्स एप्लीकेंट्स करते हैं ट्रेडमार्क फाइलिंग करते समय. और एज अ अटर्नी व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग ट्रेडमार्क लॉ वी शुड कीप इन माइंड दैट व्हाट मिस्टेक्स दे आर मेकिंग एंड व्हाट कंसल्टेशन वी हैव टू गिव. बिकॉज अगर हमें पता है कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं तो हमें ये भी पता है कि उन्हें सॉल्यूशन क्या देना है. करेक्ट. इसके बाद हम अब पहुंचते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल वे में सिखाऊंगा. ट्रिक्स एंड टिप्स है आपको अगर ट्रेडमार्क एज ए ट्रेडमार्क अटर्नी काम आगे फ्यूचर में अपना करियर बनाना है उसमें. तो आप साइड में जो है 2 वेबसाइट्स खोल लीजिए. ठीक है. एक मैं आपको बोलता हूँ IP इंडिया वेबसाइट आप खोल लीजिए. उसमें आप ट्रेडमार्क सेक्शन में चले जाइए. वहां पे आप जब जाओगे this is your website you see. ये आपकी वेबसाइट है. यहाँ पे आपको पब्लिक सर्च के लिए भी यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है. ट्रेडमार्क स्टेटस अगर आपको कभी कल को देखना है कि जो आपने एप्लीकेशन फाइल किया उसका स्टेटस आप यहाँ चेक कर सकते हो. पब्लिक सर्च यानी एज अ अटर्नी जब आप कोई एप्लीकेशन को मार्क रजिस्टर्ड हो सकता है या ये चेक करना है तो आप यहाँ चेक कर सकते हो. उसके बाद में आपको अगर ये जानना है कि कौन से मार्क नहीं रजिस्टर किए जा सकते बिकॉज दे आर वेल नोन मार्क्स, सो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो कौन से मार्क वेल नोन मार्क्स हैं. List of well known trademarks you can check here. Then there are some non-proprietary marks. This is a list given by the WIPO. You can check there as well. The manual which I mentioned you can go and check manual here as well. Trademark journals which I mentioned you can go and check trademark journals here as well. उसके बाद में आता है ट्रेडमार्क स्टेटस के बारे में आपने जान लिया. गुड्स और सर्विसेज के बारे में ये. सो अभी आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है ये चेक कर ली, बट ये वेबसाइट जो है इनफ नहीं होती. कई बार ऐसे प्रैक्टिस करते समय हैंडी नहीं होता. कई बार आपको ऐसा लगता है इससे ज्यादा एक्सटेंसिव सर्च आपको करना चाहिए एज ए ट्रेडमार्क अटर्नी टू फाइंड आउट दैट वेदर दैट मार्क इज रजिस्टर्ड और नॉट. सो आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए एक और सर्च इंजन जो डेटाबेस मैं फॉलो करता हूं और कई ट्रेडमार्क अटर्नीज फॉलो करते हैं वो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का IP ऑफिस. यहाँ पे अगर आप मिल्क सर्च करेंगे वो किस क्लास में फॉल करता है और क्या चीज मिल्क से रिलेटेड कौन से क्लास में फाइल करती है वो यहाँ आप चेक कर सकते हो. आपको हर चीज यहाँ पे मिल जाएगी. सो यू शुड कीप दिस लिंक विथ यू.
you can note down. It's ipaustralia.gov.au. You can use this website for searching your trademark class and goods as a trademark attorney in future. Then there is one more website, that is trademark class. यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट को आप मेंशन कीजिए, जैसे पान मसाला है, आप इंडियन टर्म्स को भी यूज कर सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे अगर आप पान मसाला मेंशन करते हो तो वो किस क्लास में फॉल करेगा वो मेंशन किया गया है। जैसे क्लास 29 के अंदर प्रोसेस नट्स एंड सीड्स, बीटल लीव्स एंड यूज इंग्रेडिएंट्स 29 में है, पर वही पान मसाला जो माउथ फ्रेशनर की तरह यूज किया जाता है वो क्लास 30 में। सो आपको ये क्रॉस चेक हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा कि आप जो टर्म, आपका जो एप्लीकेंट जिस क्लास के अंदर मार्क फाइल करना चाहता है और जो गुड्स फाइल करना चाहता है वो एक से ज्यादा क्लास में तो फॉल नहीं कर रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं तो आपको 2 एप्लीकेशन फाइल करने पड़ेंगे ऐसे समय। करेक्ट। सो ये एक और वेबसाइट मैंने आपको बताई। नेक्स्ट है मैड्रिड की वेबसाइट। यहाँ पे अगर आप मेंशन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मेंशन करता हूँ मोबाइल क्लास 9 के अंदर फॉल करता है, पर इससे रिलेटेड और भी जो क्लासेस के अंदर मोबाइल टर्म मेंशन की जाती है वो सभी क्लास यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यू कैन राइट डाउन दिस वेबसाइट and keep handy with you, because in future if you become a trademark attorney, as I told you, this will be very helpful for you. webaccess.wipo.int mgs you can note down. जैसे मोबाइल कंप्यूटर्स क्लास 9 में आते हैं तो मोबाइल से रिलेटेड क्रेन्स किस क्लास में फॉल करता है, और भी जो चीजें हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके बाद में जो चीजें मुझे मेंशन करनी है आपको, जैसे कि मैंने आपको मैनुअल के बारे में बता दिया, वेल नोन मार्क्स के बारे में बता दिया। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पे जब आप चेक किसी मार्क को ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं, आपको अगर ये चेक करना है, सो आप क्या करते हो, यहाँ पे ये जो पेज है आपको ओपन होगा और आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेंशन करते हो जियो, और जियो जो है टेलीकम्युनिकेशन के क्लास में फॉल करता है, राइट। तो टेलीकम्युनिकेशन का क्लास आता है टेलीकम्युनिकेशन की क्लास 38 में आपको चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 38 मेंशन करूंगा जिस क्लास में मुझे चेक करना है। यहाँ पे ये साइड में आपको सर्च होता रहेगा। एक और वेबसाइट आप साइड में ओपन कर सकते हो, उसका नाम है क्विक कंपनी। लेट मी चेक इट कैन बी ओपन और नॉट। यस इट इज ओपन। यहाँ पे आप ट्रेडमार्क सर्च में चले जाइए, यहाँ पे आप जियो मेंशन कीजिए। जियो जैसे ही आप डालोगे यहाँ पे और भी हैंडी आपको दिखाई देगा कि किस तरह से जियो से रिलेटेड जो भी मार्क जिस भी क्लास में रजिस्टर किए गए हैं यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगी। यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली कोई क्लास मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं होती कि उसमें कोई पर्टिकुलर टर्म आपको मेंशन करनी है। जियो से रिलेटेड टर्म यूज करते हुए जो भी मार्क्स है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। फिर आप यहाँ से वो एप्लीकेशन सर्च कर सकते हो। ऐसे कितने पेजेस है, काफी सारे। और अभी अगर हम गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है वो चेक करें जो दी गई है, वो सिर्फ 38 क्लास को आपको बताएगा। तो यहाँ पे आपका टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है और यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग कम है। सो ये आपको जानकारी रखनी जरूरी है एज अ अटर्नी कि आपको किस तरह से फास्ट और स्मार्ट सर्च करना है जब आप प्रैक्टिस में उतरते हो एज अ ट्रेडमार्क अटर्नी भी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने ये आपको बताया है। उसके बाद में कुछ पॉइंट है प्रायर आर्ट सर्च के लिए। जैसे मैंने कहा आईपी इंडिया आप चेक कर सकते हो, क्विक इंडिया है। उसके बाद में गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आपको यूरोपियन यूनियन की जो वेबसाइट है, जो सर्च इंजन है, डाटाबेस है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। वाइपो का जो डेटाबेस है मैड्रिड प्रोटोकॉल के थ्रू, वो भी आप चेक कर सकते हो। और लास्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। ये जो मैंने तीनों आपको बता दिए। उसके बाद में लास्ट है ट्रेडमार्क का स्टेटस चेक करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अभी जैसे कि आप लॉ स्टूडेंट हो, कई जगहों पे इंटर्नशिप आप कर रहे हो। सो मेन पर्पस इंटर्नशिप का यही है कि आप कैसे नए स्किल्स और उससे रिलेटेड और जानकारी जान सकें, राइट। सो कुछ लोग अच्छे लॉ फॉर्म्स में इंटर्नशिप किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। सो एक तरीका मैं बताता हूँ कि कैसे आप बड़े लॉ फॉर्म्स के बारे में उनके जो ड्राफ्ट से जानकारी ले सकते हो। कैसे वो अपोजिशन फाइल कर रहे हैं, कैसे वो असाइनमेंट डीड्स फाइल कर रहे हैं, किस तरह से वो पार्टनरशिप डीड्स या उनका ड्राफ्टिंग किस प्रकार का है। एक बहुत बढ़िया तरीका है उसका। आप क्विक सर्च पे जाइए,
किसी भी कंपनी का नाम सर्च करिए, जैसे मैंने जियो कंपनी का नाम सर्च किया था अभी यहाँ पर, सही बात है। यहाँ पे जाने के बाद में आपने देखा कि कई सारे मार्क्स यहाँ पे आपको मिल गए। इससे आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का नंबर यहाँ पे मिल जाता है। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का नंबर वंस यू गेट, यू गो ऑन दी IP इंडिया की वेबसाइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। देयर यू गो एंड सर्च द ट्रेडमार्क स्टेटस। ट्रेडमार्क स्टेटस में आप जाने के बाद में वो एप्लीकेशन नंबर आप वहाँ पे डालिए। वो एप्लीकेशन नंबर वहाँ फाइल डालने के बाद में ये कैप्चा आप वहाँ पे मेंशन कीजिए। उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको ओपन हो जाएंगे, ये पब्लिक डोमेन में है, ठीक है। सो आप उनकी जो एप्लीकेशन के अंदर अपोजिशन उन्होंने हियरिंग में क्या पॉइंट्स, किस तरह से उन्होंने हियरिंग में अपना सबमिशन किया है, रिप्लाई किस तरह से ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं, उसके जो ड्राफ्ट से आपको यहाँ मिल सकते हैं। किसी भी कंपनी का, जो भी कंपनी आपको सर्च करनी है यहाँ पे आप सर्च कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा हो गया, टाटा कंपनी से रिलेटेड जो भी मार्क है मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। उसके बाद में उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ से लूंगा, वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां पर उसका स्टेटस फाइंड आउट करूंगा, क्या उसका स्टेटस है, एप्लीकेशन नंबर डालूंगा, कैप्चा डालूंगा, और वहां पे आप उस एप्लीकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसका जो ऑब्जेक्शन अगर कोई उसमें लिया गया है, सो ये दीज आर द हैक्स यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वे आल्सो, राइट। सो इन द होल लेक्चर आई बिलीव, ऐसे तो प्रैक्टिकलिटी में और भी बहुत कुछ है समझाने के लिए। मैंने जो 4 चैप्टर्स में, पेजेस में मैंने जो ट्राई किया था आपको समझाने के लिए, सबसे पहले हमने रूल्स को समझा, जो रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए जब आप एज ए ट्रेडमार्क अटॉर्नी फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करने उतरते हैं। सो प्रैक्टिकलिटी में उस थ्योरी को किस प्रकार से प्रोसीजर में फॉलो किया जाता है वो ट्रेडमार्क रूल्स में हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा, फर्स्ट टॉपिक में समझा। सेकेंड टॉपिक हमने लिया मैनुअल के बारे में, किस प्रकार से एग्जामिनर अपना माइंडसेट रखता है जब वो एग्जामिन करता है एप्लीकेशन। सो आपको अगर अपने अपोजिट साइड का माइंडसेट पता हो, एज ए ट्रेडमार्क अटॉर्नी आपको एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस पता हो, तो वो किस प्रकार से एग्जामिन करता है, सो आपके एप्लीकेशन भी प्रॉपरली फाइल होंगे। सो आपने मैनुअल को समझा। अब ये जो मैनुअल से मैंने आपको बता दिया वेबसाइट पे कहाँ अवेलेबल है, आप जाइए वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, उसको एक्सेस आपको है, उसे भी रीड आउट कीजिए, राइट। उसके बाद में हमने समझा कि क्या 7 मिस्टेक्स जो है वो लोग करते हैं, एप्लीकेंट और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क करते हैं अपना ट्रेडमार्क फाइल करते समय, और अटर्नी को किस प्रकार से कंसल्टेशन करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, और टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी कि आप क्या क्या एज ए ट्रेडमार्क अटर्नी आप कहाँ पे पब्लिक सर्च कर सकते हैं, राइट। अब एक और चीज इंफॉर्मेशन आपको लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, हर कंट्री का अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है, राइट। यू कैन फाइल एप्लीकेशन इन दैट कंट्री एंड आल्सो यू कैन फाइल एप्लीकेशन इन मल्टीपल कंट्रीज एज वेल। अपनी और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का काम किया है कि आपने जो ट्रेडमार्क फाइल किया है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, राइट, कि ताकि कोई और उस मार्क को इन्फ्रिज ना कर सके। एक और नया रजिस्ट्री पैरेलली साइड में चलने लगा है जो गवर्नमेंट के थ्रू कंडक्ट नहीं किया जाता, ऑपरेट नहीं किया जाता, वो है अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री। यू कैन सी हियर अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री भी है यहाँ पे। अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री भी खुद एक डेटा मेंटेन करता है। जो लोग वहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो अपना प्रोडक्ट वहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं ट्रेडमार्क पे, और फिर कोई और उस मार्क को यूज करके सेल नहीं कर सकता है। उसके बारे में आप डिटेल में और भी स्टडी कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। मुझे लगता है वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। जैसे ये ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्ट्री का वेबसाइट है, यू कैन गो रीड आउट अबाउट इट, हाउ दे आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू देयर सेलर्स जो उनके वेबसाइट पे सेल करना चाहते हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस टुडे सेशन। आई गेस प्रैक्टिकलिटी में आपने एज ए ट्रेडमार्क अटर्नी अगर आप फ्यूचर में इसे करियर के तौर पे लेते हैं तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है, इससे आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। एंड Thank you very much, sir, that you took out your valuable time and enlightened our students on various aspects of trademark law, which is one, of course, important pillar of law. So hoping for many more collaborations in future too. Thank you, Dr. N.K. Behel, sir, for your presence throughout the session.
and of course, my dear students for listening the session very patiently. Thank you very much.